Today topic of discussion is trigonometric equations. In trigonometric equations, you have to solve, you have to find the value of theta. For examples, if you have sine theta is equal to 1 by 2, means find the value of theta. That is called trigonometric equations. Now, in this case, theta will be 30 degree up to 10th class, but now we will call it in radian, that is pi by 6. 30 degree seems to be wrong in class 11th, because in theta, this theta which is given in your left hand side, this will be always in radian. So your answer should be in radian. This is the one point you have to take care. What is the first point? Number 1, theta, that is final answer, should be in रेडियन. फाइनल आंसर रेडियन में होना चाहिए. नंबर 2, सेकेंड पॉइंट, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैज 2 टाइप्स. फर्स्ट इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस and second is your general solutions. Principal solution means theta belongs to closed interval 0 to 2 pi, and general solutions mean theta belongs to all integers. Now in this principal solution, the coverage is, if you are in first quadrant you may take alpha, in second quadrant pi minus alpha, in third quadrant it is pi plus alpha, and in fourth quadrant it is 2 pi minus alpha. This is the only one formula in principal solution, but in trigonometry, in general solutions, you have 9 formulas. For example, if I ask you कि find principal solution of sine theta is equal to minus 1 by 2. First step, the value of theta is, of course, you know that it is pi by 6. Clear? Since it is negative, lies in third and fourth quadrant. Now by this cross bar, this is alpha, this is minus, this is pi plus alpha, and this is, so this implies the principal solutions will be, theta will be equal to pi plus pi by 6 comma 2 pi minus pi by 6, that is 7 pi by 6 and 11 pi by 6. This is your final answer. The principal solutions are very easy, may come with 1 marks. You can try any of the question. If it is positive, you may take first 2 quadrant, the answer will be pi and alpha and pi minus alpha. So this is all about your principal solutions. आप अपनी एक्सरसाइज से प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं. नाउ इन जनरल सॉल्यूशंस, for general solutions
9 formulas have to be remembered. Nine formulas have to be remembered. First is if sin theta is equal to 0. इसकी डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. थीटा इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू इंटीजर z. दिस इज ए सिंबल फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर z. सेकेंड फार्मूला, if cos theta is equal to 0, this implies theta is equal to 2n plus 1 of pi by 2 for all n belonging to integer z. Third, if tangent theta is equal to 0, implies theta is equal to n pi. ये सब क्वाड्रेंट एंगल्स हैं. नॉन क्वाड्रेंट एंगल्स में इफ sin theta is equal to sin alpha, this implies theta is equal to n pi plus minus 1 raised to power n into alpha for all n belonging to integer z. ये अल्फा की वैल्यू प्रिंसिपल सोल्यूशन से निकलेगी. इफ cos theta is equal to cos alpha, this implies theta is equal to 2n pi plus minus alpha for all n belonging to integer z. Formula number 6, if tangent theta is equal to tangent alpha, this implies theta is equal to n pi plus alpha. 3 more formulas for scalar quantities. That is, if sin square theta is equal to sin square alpha, cos square theta is equal to cos square alpha, tan square theta is equal to tan square alpha, this implies theta is equal to n pi plus minus alpha. इन सब का एक ही फार्मूला होता है बिकॉज अल्फा वेरी कर जाएगा. तो ये 7 भी हो गया, 8 भी यही है और 9 भी यही है. यही मैंने 9 फार्मूलाज कहा था दैट यू हैव टू बी रिमेंबर्ड. ये पॉइंट आप ध्यान में रख लेना. लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस. कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ले लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज cos ऑफ mx इज इक्वल टू साइन ऑफ nx. ऊपर हेडिंग आता है सॉल्व. मेरा आइडिया यहाँ पे यह है कि जो cos mx है ये तो ठीक है, इसको भी cos में चेंज कर लो पाई बाय 2 माइनस nx में. अब यहां से आप ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं फ्रॉम फिफ्थ. फार्मूला नंबर 5, रिजल्ट आएगा mx इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह ये आएगा पाई बाय 2 माइनस nx. यहाँ पे n मत रखो बिकॉज m और n यहाँ पे ऑलरेडी हैं. k रख लो. फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर z. बीच में लाइन ड्रॉ कर लीजिए. एक बार प्लस साइन ले लें, एक बार माइनस साइन. प्लस साइन लेंगे तो 2k पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस nx. तो यहाँ से जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, m प्लस n ऑफ x इज इक्वल टू 2k प्लस 1 बाय 2. पाई बाहर आ जाएगा तो x इज इक्वल टू 4k plus 1 divided by 2 times of m plus n of pi for all k belongs to integer z. दूसरा आंसर, अगर जब माइनस साइन लेंगे माइनस पाई बाय 2 प्लस एन एक्स होगा.
x कॉमन, यहाँ पे m माइनस एन आ जाएगा, यहाँ पे 4k माइनस 1/2, यहाँ पाई आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 4k माइनस 1 ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 इंटू m माइनस एन फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर z। देखिए यहाँ पे दो वर्किंग हैं। स्टूडेंट्स कॉस को साइन में भी कर सकते थे, लेकिन ये साइन वाला फार्मूला थोड़ा सा देखने में इवन एंड ओड पे होता है। जब ऐसी कोई सिचुएशंस आती हैं तो नॉर्मली हम फार्मूला कॉस में ही लगाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, cot nx next is cot of tangent nx is equal to cot mx। सेम क्वेश्चन है, अपने आप ट्राई कर लेना। इसको भी टेंजेंट π/2 माइनस एम एक्स लिख लो, ये टेंजेंट एन एक्स आ जाएगा। इसमें आप फार्मूला नंबर 6 लगा लेना। इसमें भी k का इस्तेमाल कर लेना कि एन एक्स इज इक्वल टू k पाई प्लस अल्फा की जगह ये इसमें एक ही टर्म आएगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एम प्लस एन आ जाएगा, ये 2k प्लस 1 ऑफ π/2 आ जाएगा फॉर ऑल k बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो दिस इंप्लाइज सॉल्व का मतलब x ही होता है कि 2k प्लस 1 ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ m plus n। This is question number 2 that I have taken. Question number 3, solve the equations। cos x plus sin x is equal to cos 2x plus sin 2x। यहां से आप ये लिख सकते हैं कि sin 2x माइनस sin x इज इक्वल टू cos x माइनस cos 2x। Apply CD's formula, 2 cos 3x by 2 into sin x by 2 is equal to minus 2 sin 3x by 2 into sin x by 2। टू से 2 कैंसल्स, sin x by 2 कॉमन, cos 3x by 2 प्लस sin 3x by 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा आइदर sin x by 2 इज इक्वल टू 0 और टेंजेंट ऑफ 3x by 2 इज इक्वल टू -1। बिकॉज जब आप इसको 0 करेंगे, या एक स्टेप लिख ही देते हैं कि cos 3x by 2 इज इक्वल टू माइनस साइन 3x by 2। तो दिस इम्प्लाई टेंजेंट ऑफ 3x by 2 इज इक्वल टू -1। लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ से फार्मूला आ जाएगा x by 2 इज इक्वल टू n पाई फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो यहाँ से एक आंसर तो आ गया x इज इक्वल टू 2n पाई। दूसरा आंसर, इसको आप टेंजेंट ऑफ -π/4 लिख लेना। तो यहाँ से 3x by 2 इज इक्वल टू n पाई, m ले लेना चाहिए क्योंकि उधर n हमने ले लिया, -π/4। तो x विल बी इक्वल टू 2/3
of m pi minus pi by 4 for all m belongs to integer z. Next, three cos square x minus 2 root 3 sin x into cos x minus 3 sin square x इज इक्वल टू 0। देखिए, अगर हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को कलेक्ट करें तो ये 3 टाइम द कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनता है। ये माइनस रूट 3 ये बनता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इंटू कॉस 2 एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 2 एक्स बन जाता है। दिस implies tangent of 2x is equal to root 3। ठीक है, रूट 3 होता है टेंजेंट पाई बाय 3। तो दिस implies 2x is equal to n पाई प्लस पाई बाय 3। तो दिस implies x is equal to n pi by 2 plus pi by 6 for all n belonging to integer z। बस आपके फार्मूलों की कमांड चाहिए, सॉल्यूशंस ये बहुत इजी रहते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं रहती। वन मोर क्वेश्चंस। थ्री कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स इज इक्वल टू 7। इसमें नेचुरली हम एक मेथड लगाते हैं, लेट 3 इज इक्वल टू आर कॉस अल्फा एंड 4 इज इक्वल टू आर साइन अल्फा। ये इसकी वर्किंग होती है। स्केयरिंग एंड एडिंग, आर स्केयर जो है वो 9 प्लस 16 25, तो आर की वैल्यू 5 आ जाती है। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, तो टेंजेंट अल्फा 4/3 आ जाता है। दैट इज अल्फा लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही छोड़ दो। तो हम ये थर्ड वैल्यू कह देते हैं, ये फोर्थ कह देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज आर कॉस अल्फा कॉस एक्स माइनस आर साइन एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू 7। ये मैंने फ्रॉम फर्स्ट लिखा। आर कॉमन, आर की वैल्यू 5 है। फार्मूला बन जाएगा ये कॉस ऑफ एक्स प्लस अल्फा is equal to 7। It means cos of x plus alpha is equal to 7/5। No solutions आएगा because cos x plus alpha should always lie between 1 and -1। बिकॉज cos x प्लस अल्फा कभी भी 7/5 के इक्वल नहीं हो सकता, तो दैट विल द ओनली रीज़न दैट वी विल कॉल इट इज़ ए नो सॉल्यूशंस। तो ये मैंने 5 क्वेश्चंस आपके लिए हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप कवर अप कर लेना।